Welcome to VLearn, Virtual Learning Network, Session 3 of Cost Accounting. In this session, we will discuss labor cost control, EOQ, material documents, then standard costing, its meaning, determination of standard cost and variance analysis. Let's see labor cost क्या है. Direct labor cost basically it's a part of wage bill or payroll that can be specifically and consistently assigned to or associated with the manufacture of a product. Direct labor cost directly product manufacturing से related होती है. A particular work order or a provision of service. The management is interested in labor cost on account of following reason. तो मैनेजमेंट को बहुत मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो लेबर कॉस्ट को एस्टिमेट कर सके. वाई? बिकॉज टू यूज़ लेबर कॉस्ट एज अ बेसिस फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ लेबर. तो लेबर कॉस्ट से ही लेबर कॉस्ट अगर फर्म को लेबर कॉस्ट पे करनी पड़ रही है दैट मीन्स कि उसको लेबर से एफिशिएंटली काम भी कराना है. देन टू आइडेंटिफाई लेबर कॉस्ट विद द प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स जॉब्स फॉर फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ एवरी प्रोडक्ट ऑर्डर और जॉब. एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट है, राइट. देन टू यूज इट एज अ बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड if the percentage of direct labor cost to overhead is to be used as a method of absorption of overhead. So labor cost is also used in absorption costing, right. तो absorption costing में overhead absorb करने में when we say overhead absorption तो उस केस में हम देखते हैं कि लेबर कॉस्ट के ऊपर अगर कैलकुलेट करना है तो what is the percentage of direct labor cost to overhead. Then to find out the indirect labor cost to be treated as overhead when this indirect labor cost is also used to be calculate as overhead. Then to reduce the labor turnover, now there are certain methods. Below are the methods used in estimate turnover. तो एवरेज नंबर अगर कैलकुलेट करना है, एवरेज नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट स्टार्टिंग में कितने एम्प्लॉयज़ थे, एट द एंड ऑफ द ईयर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और उसको अगर हम डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमारे पास आता है एवरेज नंबर. देन विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन मेथड हाउ डू वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सेपरेटेड इन अ पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द पीरियड. When we multiply it by 100 then we can have the value in percentage terms. Then with the help of replacement method number of employees replaced, एक पीरियड में एक साल में कितना रिप्लेस होते हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस किए जाते हैं डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100. So these are the methods through which we can estimate the labor turnover. In case of flux method, here number of employees separated plus number of employees replaced divided by average number of employees in the period, that will be multiplied by 100. is by this we can estimate the turnover. Now EOQ क्या है? EOQ basically that means कि एक टाइम में हमें कितनी क्वांटिटीज़ का ऑर्डर प्लेस करना है और वो इकोनॉमिक टर्म्स में भी होना चाहिए. दैट मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इट रेफर्स टू दैट नंबर ऑर्डर्ड इन अ सिंगल परचेज सो दैट द एक्यूमुलेटेड कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर एट मिनिमम लेवल. तो एक टाइम में हमें कितना यूनिट्स का ऑर्डर करना है जिससे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके. The quantity that is ordered at one time should be so which will minimize the total of, which will minimize किस चीज़ को कम करे वो, cost of placing order and cost of storing the goods as well as the interest on the capital invested. This is the formula for EOQ. It is the under root of 2 multiplied by RU multiplied by OC divided by UC into CC. That is EOQ is economic order quantity, RU is annual required units, एक साल में कितना यूनिट्स की एनुअल कंजम्पशन है. देन OC is ordering cost, UC is inventory unit cost and CC is
carrying cost as percentage of unit cost. So by applying this formula we can have the units of EOQ. दिस इज़ द EOQ ग्राफ. EOQ इज़ जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कट कर रही हैं, दैट इज़ EOQ लेवल, राइट. सो एक्स एक्सिस पे ऑर्डर साइज है और वाई एक्सिस पर कॉस्ट है. तो अगर 4 ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं, दैट इज़ इन थाउजेंड्स, राइट. 4000 ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं तो 6000 की कॉस्ट लगती है. तो इस तरीके से जहाँ पर हमारा टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जहाँ पर हमारा कट करता है वही हमारा EOQ का पॉइंट है. सो दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. नाउ सी मटेरियल डॉक्यूमेंट्स. मटेरियल डॉक्यूमेंट्स ये इस प्रोसेस फॉलो किया जाता है. Here first we will request for the material, that is material requisition, then purchase requisition, then purchase order. This is third step is purchase order, fourth step is delivery note और last में purchase invoice prepare करना होता है. Let's see in detail what is material और store requisition. तो ये जो document है basically this is a document through which workstation in charge requires मटीरियल फ्रॉम द स्टोर. तो वो रिक्वेस्ट भेजता है कि उसको इतना मटीरियल चाहिए, राइट. देन इट इज़ सेंट टू द स्टोर इंचार्ज को ये भेजा जाता है विच इज़ अप्रूव्ड बाय प्रोडक्शन मैनेजर, जिसमें कि मेंशन होता है कि कितना यूनिट्स उनको चाहिए, बेस्ड ऑन विच द स्टोर इंचार्ज इशूज द रिक्वायर्ड मटीरियल टू द वर्कशॉप. सेकेंड डॉक्यूमेंट इज परचेज रेक्विजिशन. बेसिकली इट इज़ फॉरवर्डेड बाय स्टोर डिपार्टमेंट टू द परचेज डिपार्टमेंट, जिसमें कि मेंशन होता है कि कितना मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन किया जा रहा है. एंड इट ऑल्सो स्टेट्स द रीऑर्डर लेवल अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो परचेज रेक्विजिशन परचेज डिपार्टमेंट को भेजा जाता है जिसमें कि मैक्सिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, देन रीऑर्डर लेवल, ये सभी चीज़ें मेंशन होती है. It also indicates the current position of the material in the store. Next is the purchase order document. Basically it is used to place order to the suppliers. Suppliers को किस क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करना है ये चीज़ परचेज ऑर्डर में मेंशन होती है. दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, स्पेसिफिकेशन, रेट, डिस्काउंट, सेटलमेंट टर्म, टाइम ऑफ डिलीवरी एंड डीलिंग पर्सन. दैट मीन्स कि उस डॉक्यूमेंट में सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है कि किस प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी परचेज उनको करनी है, क्या स्पेसिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ कलर, ये चीज़ें उसमें स्पेसिफाई होती हैं, किस रेट पे उनको चाहिए, कोई अगर डिस्काउंट है तो वो मेंशन किया जाता है, किस टाइम पे डिलीवरी होगी गुड्स की. तो ये सब चीज़ें मेंशन होती है परचेज ऑर्डर में. Based on the purchase order, the supplier manages to deliver material to the ordering entity. जिसने ऑर्डर प्लेस किया है उस परचेज ऑर्डर के बेसिस पे सप्लायर जो है वो डिलीवर करता है मटेरियल टू द ऑर्डरिंग एंटिटी. उसके बाद है डिलीवरी नोट. ये डिलीवरी नोट जो है ये इशू करता है सप्लायर और इशू किसको किया जाता है, परचेज़र को, जिसमें कि मेंशन होता है कि क्या क्वांटिटी है, क्या स्पेसिफिकेशन है उस प्रोडक्ट की जो कि डिस्पैच किया जा रहा है. एंड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल द रेसिपिएंट एक्नॉलेजेस बाय साइनिंग द डिलीवरी नोट एंड रिटर्न इट बैक टू द सप्लायर. पहले सप्लायर जो है वो साइन कराता है परचेज़र से कि उसने इतनी क्वांटिटी और इस स्पेसिफिकेशन की क्वांटिटी डिस्पैच कर दी है, और जब वो रेसिपिएंट को मिलती है, मीन्स परचेज़र को मिलती है, तो वो उसको साइन करके उस डॉक्यूमेंट को एक्नॉलेज करके वापस से सप्लायर को भेज देता है. देन दिस वाज द डिलीवरी नोट डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट इज द परचेज इनवॉइस. इट इज़ द डॉक्यूमेंट दैट एविडेंसेस द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज ऑफ मटीरियल. It is being issued by suppliers. Sorry, it is issued by seller. Stating जिसमें mention होता है क्या quantity है, rate, discount and amount of purchased material. Next जो document बनाया जाता है that is goods received note, which is prepared by inspection department. जब वो सभी products जो कि उसने receive की होती है वो सारी
प्रोडक्ट्स को वेरीफाई कर लेता है, उनकी क्वालिटी वेरीफाई कर लेता है, तो वो गुड्स रिसीव नोट बनाता है, एंड दिस रिसीव्ड मटेरियल अलॉन्ग विद द गुड्स रिसीव नोट इज सेंट टू द स्टोर इंचार्ज. Next document is bin card. Bin card is basically store in charge after receiving the material as per the goods received note. He places the material जहाँ पे रखना चाहिए वहाँ पर उस लोकेशन पे मटेरियल रखा जाता है और बिन कार्ड में उसकी एंट्री की जाती है. तो बिन कार्ड किस लिए यूज़ होता है? बिन कार्ड इज़ यूज टू मेंटेन फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसीव्ड एंड इशूड फ्रॉम द स्टोर. तो स्टोर से कितना मटेरियल जा रहा है, कितना मटेरियल आ रहा है, इसकी जो एंट्रीज होती है वो हम बिन कार्ड में करते हैं. उसके बाद बनाया जाता है स्टोर लेजर कार्ड. स्टोर लेजर कार्ड बनाया जाता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाता है स्टोर लेजर, जिसमें कि कॉस्ट पर यूनिट के साथ कैलकुलेशन मेंशन्ड होती है. द मेन पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द स्टोर लेजर कार्ड इज टू नो द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड मटेरियल इन स्टोर अलॉन्ग विद द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल. तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लिफो मेथड, फिफो मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, इनकी हेल्प से कॉस्टिंग की जाती है और वही मेंशन किया जाता है स्टोर लेजर कार्ड में. नाउ सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज जिसमें कि कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग फर्म एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को स्टैंडर्डाइज करती है. बेसिकली प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट होती है. कुछ जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट को. स्टैंडर्ड कॉस्ट एज इट इज a predetermined cost which is calculated from management's standards of efficient operations and relevant necessary expenditure. जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो एक प्लान्ड कॉस्ट होती है कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में इतनी कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये आनी चाहिए, बट इट मे बी डिफर while or when actually the product is produced. So technique of using standard cost for the purpose of cost control is known as standard costing. तो standard costing जो ये टेक्निक है ये बेसिकली हम अप्लाई करते हैं for controlling the overall cost, for controlling the cost of that product. Let's see the advantages of standard costing. First advantage is efficiency in measurement or efficient measurement. Basically with the help of standard costing we can compare the actual cost with the standard cost that enable the management to evaluate the performance of various cost centers. Then इसकी हेल्प से हम variances को find out कर पाते हैं. The performance variances are determined by comparing, we can compare actual cost with the standard cost, जिससे कि हम differences और deviations को find out कर पाते हैं. Then third advantage है management by exceptions. Here we can fix the performances of individual departments. उनके predetermined standards जो है वो fix किए जाते हैं. Basically management by exception means that everybody is given the target. हर एक को टारगेट दिया जाता है कि उनको क्या अचीव करना है. Then it also helps in cost control. Standard costing जो है ये एक cost control टेक्निक है और हम इससे एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से और भी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है और एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है. राइट डिसीजंस, दैट मीन्स इट इनेबल्स एंड प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, जिससे कि वो ये चीज़ें हेल्प करती है, ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में. देन इट eliminates inefficiencies. The setting of standards for different elements of cost, it requires a detailed study of different aspects, and standards are set differently for manufacturing department, for administrative department and selling expenses. इन सब के लिए अलग अलग standards जो है वो fix up किए जाते हैं. Now see limitations क्या है standard costing की. सबसे पहले जो limitation है वो है कि अगर product non standard product है तो उसके लिए हम ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई नहीं कर सकते. सेकंड थिंग इज़ कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. थर्ड, कंडीशंस, जिन कंडीशंस में स्टैंडर्ड्स को फिक्स किया जाता है वो कंडीशंस हमेशा सेम नहीं रहती. एंड नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अप्लाई फॉर कंट्रोलेबल वेरिएंसेस ओनली. नाउ सी डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट. हाउ टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड कॉस्ट. सबसे पहले डिटर्मिन किया जाता है कॉस्ट सेंटर.
दैट मीन्स कि किसकी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है. कॉस्ट सेंटर मीन्स it may be a department or a part of department or any equipment or any machinery. तो वो कॉस्ट सेंटर होती है जो जिसकी भी कॉस्ट को कंट्रोल करना है वो कॉस्ट सेंटर है. सो फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन द कॉस्ट सेंटर. देन करंट स्टैंडर्ड्स. देन स्टैंडर्ड्स आर टू बी फिक्स. स्टैंडर्ड्स जो है वो डिफरेंट तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि करंट स्टैंडर्ड, जिसमें जो ये स्टैंडर्ड होता है इट्स अ स्टैंडर्ड विच इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर यूज़ ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इज़ रिलेटेड टू करंट कंडीशन. वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए जो स्टैंडर्ड्स फिक्सअप किए जाते हैं वो होते हैं करंट स्टैंडर्ड्स. आइडियल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करते हैं. आइडियल स्टैंडर्ड्स दीज आर fixed on the assumption that favorable conditions will prevail and the price paid for material will be the lowest and wastages will be minimum possible. उसके बाद आते हैं बेसिक स्टैंडर्ड्स. बेसिक स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए और बहुत लंबे समय के लिए फिक्सअप किए जाते हैं, और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये टाइम टू टाइम रिवाइज किए जाते हैं as there is some if there is any changes in the specification of material or technology. उसके बाद है normal standards. Normal standards which it is defined as the standard. It is anticipated and can be attained over a future period of time. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन. में स्टैंडर्ड्स को डिटर्मिन करने के बाद हमें करना होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. बेसिकली इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स स्टैंडर्ड्स को फिक्स करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और देयर मे बी अ कमिटी फॉर्म फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, राइट. देन अकाउंटिंग सिस्टम. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इज ऑल्सो नेसेसरी टू मीट द रिक्वायर्ड पर्पस, एंड कोड्स जो है वो दिए जाते हैं जिसकी की हेल्प से ज़्यादा स्पीडली वर्क किया जा सके. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरिएंस एनालिसिस. वेरिएंस एनालिसिस इज वेरिएंस मीन्स द डिफरेंस और डेविएशन वी कैन से. So difference between actual result and expected result is variance analysis. The process by which total difference between standard and actual result is analyzed, this is known as variance analysis. तो अगर actual results expected result से positive that means greater है, better है, तो वो favorable variance होता है, और अगर actual results जो है if they are in worse than expected one, then that condition is adverse. वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस में हम लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस. डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस दैट मीन्स कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन what the output actually cost and what it should have cost in terms of material, that is direct material variance. उसके बाद लेबर टोटल वेरिएंस जो है दैट इज़ कि एक्चुअल में लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है और एक्सपेक्टेड क्या थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी, राइट. So here we are winding up the session. At the end there is one exercise. There are two questions. One is explain EOQ with its graph, and second is what is variance analysis. Thank you very much. Happy learning. We learn.